بھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو کہ فیز 2 میں ہم نے پاکستان کے تمام بینکس ایڈ کر دیے ہیں۔ اسلامک بینکنگ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو ایڈ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا جو مارک اپ پہلے فیز میں 6% تھا اور 8% تھا، اب اس کو کم کر کے 3% اور 4% پہ لے آئے ہیں۔ دوسرا جو پہلے فیز میں 2 ٹیئرز تھے، پاکستان کے نوجوان 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک بغیر کسی کولیٹرل کے یہ لے سکتے تھے فائنینشیل سپورٹ۔ اب الحمدللہ وہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بغیر کسی کولیٹرل کے یہ فائنینشیل سپورٹ لے سکیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے شاپ آن دا ویل، یہ بھی ایک سٹارٹ اپ ہے پاکستان میں، یہ بھی ایک ریولوشنری انشاءاللہ تعالی ایک بزنس ہمارا ایکشن پلان ہوگا پاکستان میں، اکانومی کو بوسٹ کرنے کا، جاب کریشن کرنے کا۔ اور جس طرح عرفان اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ سرکولر اکانومی جو اس پروڈکٹ کے ساتھ باقی انڈسٹری اٹیچڈ ہے، سپلائی چین اٹیچڈ ہے، اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی شاپ آن دا ویل سے۔ اور 100 ارب روپے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کامیاب جوان میں جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے رکھے تھے، اور جس میں کم از کم 25 ارب روپے پاکستان کی جو ینگ فیمیلز ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی اگر وہ اپلائی کریں گے، ماشاءاللہ بڑی ہم نے دیکھا ہے ہماری زبردست ینگ بزنس ویمنز جو ہیں، انٹرپرینورز کام کر رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج میرا خاص لاہور چیمبر آف کامرس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی تمام چیمبرز میں ینگ انٹرپرینورشپس کے باقاعدہ یہاں آفیسز بنائے گئے ہیں، پروموٹ کیا جا رہا ہے ینگ انٹرپرینورشپ کو۔ اور اسی طرح وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پیمرا نے آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا ہے۔ پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کیٹیگری پر بے بنیاد اعتراض سامنے آیا ہے۔ 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض لگا کر لائسنس معطل کر دیا گیا۔ کیٹیگری کے بارے میں 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے اطلاعات فہد ہارون پراسرار طور پر پیمرا آفس آئے، جس کے بعد وزیر اعظم کے فوکل پرسن فہد ہارون کی پیمرا آفس آمد کے فوری بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیمرا نے آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا ہے۔ پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کیٹیگری پر بے بنیاد اعتراض لگایا گیا۔ 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض لگا کر لائسنس معطل کر دیا، جبکہ کیٹیگری کے بارے میں 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے اطلاعات فہد ہارون پراسرار طور پر پیمرا آفس پہنچے۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن فہد ہارون کی پیمرا آفس آمد کے فوری بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کر دیا گیا، اور اس حکم نامے کے مطابق 24 نیوز کے لائسنس کو معطل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے موقف کو سنے بغیر یک طرفہ کارروائی پیمرا کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہے۔ پیمرا نے آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کے لائسنس کیٹیگری پر بے بنیاد اعتراض لگاتے ہوئے لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگری کے بارے میں 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے اطلاعات فہد ہارون پراسرار طور پر پیمرا آفس پہنچے، اور وزیر اعظم کے فوکل پرسن فہد ہارون کی پیمرا آفس آمد کے فوری بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ ٹوئنٹی فور نیوز کی بندش پر سیاسی رہنماؤں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ حکومت میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں، مشرف دور میں بھی میڈیا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں دیکھا گیا۔ بدترین جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت ہے، حکمرانوں کو سچ پسند نہیں۔ اور کا لائسنس جو ہے اس کو معطل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جو سچ پہ مبنی ہو اس کو نشر کیا گیا جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے۔
یعنی وہ سچ جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا سزا کا اور انتقام کا عمل جو ہے وہ اس کو روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ غیر جمہوری اور آمرانہ سوچ رکھنے والے عمران نیازی صاحب ہیں اور ان کو 24 کا سچ کبھی راس نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی فتح جو ہے وہ حق اور سچی کی ہوتی ہے اور فتح اسی کی ہوتی ہے کہ جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ تو آپ اپنا راستہ مت چھوڑیے، انشاءاللہ ان کو آپ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ 24 نیوز کو بھی بند کر دیا گیا ہے، چونکہ 24 نیوز آزادانہ طور پہ اور بے لاگ انداز میں ملکی حالات پر تبصرے کر رہا تھا اور عوام کو حکومت کی کارکردگی پر بہت غیر جانبدار انداز میں حقائق سے آگاہ کر رہا تھا۔ حکومت کو یہ بات ناگوار گزری اور بجائے یہ کہ وہ اپنی کارکردگی درست کرے، اس نے چینل بند کر دیا۔ 24 نیوز کی بندش پر سیاسی رہنماؤں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں، مشرف دور میں بھی میڈیا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں دیکھا، بدترین جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت ہے، حکمرانوں کو سچ پسند نہیں ہے، اس لیے چینل کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان بار کونسل کا اجلاس، 24 نیوز کی لائسنس معطلی کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی کی زیر صدارت اجلاس میں 24 نیوز کی لائسنس معطلی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پاکستان بار کونسل کا 24 نیوز کی لائسنس معطلی کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے 24 نیوز کی لائسنس معطلی کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اجلاس میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل اعظم نذیر تارڑ نے بھی شرکت کی۔ صدر سپریم کورٹ بار اور ممبر پاکستان بار کونسل سید قلبی حسن نے بھی شرکت کی۔ ممبر پاکستان بار احسن بھون، حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم اجلاس ہے جس میں شرکت کی گئی ہے مختلف شخصیات کی جانب سے۔ پاکستان بار کونسل کا اجلاس 24 نیوز کی لائسنس معطلی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں 24 نیوز کی لائسنس معطلی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ایمرجنٹ میٹنگ میں ہم نے مشاورت سے یہ طے کیا ہے، احسن بھون صاحب کی پرپوزل کو سپورٹ کرتے ہوئے اختر حسین صاحب، سید قلبی حسن صاحب، حفیظ الرحمان صاحب اور عابد ساقی صاحب نے سپورٹ کیا کہ عوام تک سچی خبر اور دیانتدارانہ رائے پہنچانا یہ ہر میڈیا ہاؤس کی ذمہ داری ہے، نہ صرف اخلاقی بلکہ قانونی، اور ہر شہری کا یہ آئینی حق ہے کہ اس تک سچ پہنچے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح سے آزادی صحافت پر سینسرشپ اور سختی کی گئی ہے اور جس طرح میڈیا ہاؤسز کو گرل کیا گیا ہے، پاکستان بار کونسل نے اور بار باڈیز نے پہلے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور چینل 24 کے کیس میں بالخصوص آج جو ڈیسیژن دیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ غیر آئینی ہے۔ یہ جو آئینی حقوق ہیں عوام پاکستان کے، ان کی یہ نفی کرتا ہے۔ گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، اپنی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کا اجلاس 24 نیوز کی لائسنس معطلی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی کی زیر صدارت یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رپورٹر ملک اشرف نے۔ ملک اشرف بتائے گا، پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی 24 نیوز کی بندش کے حوالے سے مذمت کی گئی ہے۔ آج چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی، ممبران پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری، ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون، اور اس کے علاوہ صدر سپریم کورٹ بار اور ممبر پاکستان بار کونسل سید قلبی حسن، ممبر پاکستان بار کونسل اختر حسین جو کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبرز بھی ہیں، ان سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ اور اس ایجنڈے میں پاکستان بار کونسل کے ایک دیگر معاملات کے علاوہ 24 نیوز کی چینلز کی معطلی کا معاملہ بھی اس اجلاس میں ایجنڈے میں شامل تھا۔ پاکستان بار کونسل کے تمام ممبران نے فردن اس پہ غور کیا۔ ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون نے اس آئٹم کو ایجنڈے میں شامل کرنے کی ریکمنڈیشن دی اور اس معاملے کو اٹھایا، جس پہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار اعظم نذیر تارڑ نے اس کو ایجنڈے میں شامل کرنے کی باقاعدہ منظوری دی۔ تمام بار کونسل کے ممبران نے فردن 24 نیوز کی بندش کے اقدام کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے، اور قرار دیا ہے کہ پاکستان بار کونسل اس
24 न्यूज़ की बंदिश के इकदाम को मजम्मत करती है। इजहार राय और आज़ादी का इजहार हर शय का हक है और मौजूदा हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि कुछ सच दिखाए और वो अपनी मर्जी की सच बुलवाना चाहिए। और मजीद मेंबरान का ये भी कहना था कि आज़ादी राय जो है वो हर शहरी का हक है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल सैयद कल्ब हसन का ये कहना था कि हुकूमत जो है इनको चाहे मीडिया हो या अदालतें हो कोई भी हक सच पे फैसला दे जो इनको पसंद नहीं है। सैयद कल्ब हसन जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, उन्होंने भी 24 न्यूज़ की बंदिश के इक़दाम की मजम्मत की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर 24 न्यूज़ मुअत्तल करने के फैसले को वापस लिया जाए, नशियात बहाल की जाए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नज़ीर तारड़ ने भी इस 24 न्यूज़ की बंदिश के फैसले की मजम्मत की है। कहना था कि वकला हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हक सच का साथ देते हैं और वो चाहते हैं कि हक और सच जो है उसका वकला हमेशा साथ दिया और जो हुकूमतें हैं अगर वो उनको कुछ चीज़ नागवार गुजरती है तो वो ऐसे इकदाम करती हैं और वकला जो गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी इकदाम है उनकी हमेशा मजम्मत करते हैं। और 24 न्यूज़ की बंदिश की भी वो भरपूर मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इसे फौरी बहाल किया जाए। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने भी इजहार करते हुए कहा कि 24 न्यूज़ की बंदिश की वो मजम्मत करते हैं और उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो हक और सच को सुनना नहीं चाहती और जो भी हक और सच बोलता है उसको आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और ये ठीक है मलिक अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चैनल 24 पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है और उसकी सारी नशरियात को मैं समझता हूँ कि ये विक्टिमाइजेशन है और आज़ादी सहाफ़त पे बहुत बड़ा हमला है। तो मेरी ये प्रपोजल होगी कि तमाम दोस्त इसको कैरी आउट करें और इसकी कंडेमनेशन करें और हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि विदाउट एनी डिले 24 चैनल जो है उसकी नशरियात जो है वो दोबारा कंटिन्यू की जाए। मैं तो आवाम को तो सीधी खबर चाहिए जिसको वो गवर्नमेंट पसंद नहीं करती, इसलिए इसको फौरन इसका जो है इसकी जो किया है इन्होंने इसको ख़त्म करें और चैनल 24 को अपनी नशरियात जारी करने का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। चैनल को या किसी अखबार को या मीडिया के किसी भी हिस्से को बंद करना, इससे ज़्यादा कोई आमराना कदम नहीं हो सकता और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी पॉजिटिव अगर तनकीद है टीवी पे अखबार पे तो उसको बजाय इसके कि उनका मुँह बंद कर दिया जाए, उनकी ज़बान बंद की जाए, उसको अपने आप को ठीक करना चाहिए। और जो है ये जो नशरियात पे पाबंदी लगाई गई हम इसको कंडेम करते हैं, ये गलत है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की इमरजेंट मीटिंग में हमने मुशावरत से ये तय किया है हसन बून साहब की प्रपोजल को सपोर्ट करते हुए अख्तर हुसैन साहब, सैयद कल्ब हसन साहब, हफीजुर रहमान साहब और आबिद साकी साहब ने सपोर्ट किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की 24 न्यूज़ की नशरियात बंद करने की मजम्मत। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए मीडिया पर शबखून मार रही है। डॉक्टर आतिफ मजीद के मुताबिक ये कहा जा रहा है पैमरा को इस्तेमाल करते हुए 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करना गैर कानूनी इकदाम है। मेरा नाम डॉक्टर अमार यूसुफ है, प्रेसिडेंट वाईडी लाहौर जनरल अस्पताल। जिस तरह के ये हम देखते आए हैं कि हुकूमत हमेशा हेल्थ प्रोफेशनल्स को और डॉक्टर्स को उनकी हक की आवाज़ उठाने पे विक्टिमाइज करती है, टर्मिनेट करती है। इसी तरह आज दोबारा पैमरा ने चैनल 24 को हक की आवाज़ उठाने पे, हेल्थ प्रोफेशनल्स के मसाइल को आगे लाने पे उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है, जो कि गैर जमहूरी इक़दाम है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम पैमरा से और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर चैनल 24 का लाइसेंस बहाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कासिम अवान, जनरल सेक्रेटरी वाईडी पंजाब। पिछले दिनों लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर हमने एक दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर मुज़म्मती ट्वीट किया गया है। आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है, अपोजिशन लीडर ने ट्वीट किया है। बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। जी हाँ, ट्वीट किया गया है अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। उनका कहना है कि 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर मजम्मत करता हूँ। आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है।
बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर मजम्मती ट्वीट। उनका कहना था कि आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है, जबकि बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर मजम्मती ट्वीट किया है। आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है, जो कि अपनी स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। दीगर जो सियासी शख्सियात हैं उनकी जानिब से भी मजम्मती बयान दिए जा रहे हैं। आज़ादाना सहाफ़त पर जो हमला किया गया है उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है सियासी शख्सियात की जानिब से, और इसी सिलसिले में एक कड़ी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर ट्वीट किया है, जो कि अपने स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बदकिस्मती से PTI की हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त को ख़त्म किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 24 न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तली पर मजम्मती ट्वीट किया गया है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। जी हाँ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर मजम्मती ट्वीट किया गया है। उनका कहना था कि आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है। बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया को आज़ादी ख़त्म की जा रही है, मीडिया से आज़ादी छीनी जा रही है। आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है, मगर बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। ये ट्वीट किया गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से। उनकी जानिब से 24 न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तली पर मजम्मती ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है, मगर बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, इस हवाले से आपको बता रहे हैं। और ये ट्वीट जो है वो अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। मजम्मती ट्वीट किया गया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अलावा दीगर सियासी शख्सियात की जानिब से भी, जिनमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद हसन मुर्तज़ा और सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इजहार राय पर हमला किया गया है, इस बराए नाम जमहूरी हुकूमत की जानिब से। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर मजम्मती ट्वीट किया गया है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि बदकिस्मती से आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाए जा रहे हैं, बैन किया जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है मीडिया पर, और इस हवाले से मजम्मती ट्वीट किया गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बदकिस्मती से आज़ादी तकरीर और आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाया गया है। बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। जी हाँ, उनका कहना था कि आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है, जबकि बदकिस्मती से PTI हुकूमत में मीडिया की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। इसके साथ साथ पैमरा की जानिब से ये जो इक़दाम उठाया गया है, इसकी शदीद अल्फाज में सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी मजम्मत की जा रही है। इमरान नियाज़ी हुकूमत की जानिब से पैमरा के जरिए आज़ादी सहाफ़त पर एक और बार 24 न्यूज़ के लाइसेंस को मुअत्तल करना इस हुकूमत की फाशिस्ट की अक्कासी है। हुकूमत अपनी नाहली और ऐबों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे औचे हथकंडों पर उतर आई है। हम इस कदम की भरपूर मजम्मत करते हैं। एक और मजम्मती ट्वीट सामने आ गया है। इमरान नियाज़ी हुकूमत की जानिब से पैमरा के जरिए आज़ादी सहाफ़त पर यह ट्वीट किया गया है। इसहाक डार की जानिब से ट्वीट किया गया है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। एक और बार है और 24 न्यूज़ के लाइसेंस को मुअत्तल करना इस हुकूमत की फैशिस्ट जो रद्द-ए-अमल है उसकी अक्कासी करती है। हुकूमत अपनी नाहली और ऐबों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के औचे हथकंडे अपना रही है। ये ट्वीट किया गया है इसहाक डार की जानिब से। तमाम जो सियासी शख्सियात हैं उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इमरान नियाज़ी हुकूमत की जानिब से पैमरा के जरिए आज़ादी सहाफ़त पर एक और बार किया गया 24 न्यूज़ के लाइसेंस को मुअत्तल करना इस हुकूमत की फैशिस्ट रद्द-ए-अमल की अक्कासी है। हुकूमत अपनी नाहली और ऐबों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे औचे हथकंडों पर उतर आई है। हम इस कदम की भरपूर मजम्मत करते हैं। जी हाँ, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी हुकूमत की जानिब से पैमरा के जरिए आज़ादी सहाफ़त पर एक और वार किया गया है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस को मुअत्तल करना इस हुकूमत की फाशिस्ट ज़हनियत का आगाज़ है। हुकूमत अपनी नाहली और ऐबों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हम इस
भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से मजम्मती ट्वीट किया गया है और उनकी जानिब से भी पैमरा की जानिब से उठाए गए इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना के जदीद इलाज और तशखीस पर इजलास मुनक़िद हुआ। जदीद तहकीक, जदीद तरीका इलाज और तशखीस के मुतालिक बाहमी तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया के नामवर वायरोलॉजिस्ट और वबाई अमराज के माहिरीन ने शिरकत की। PCR टेस्टिंग मुस्बत आने पर बार बार टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं। माहिरीन की जानिब से कहा गया कि बुखार, फ्लू और सरदर्द कोरोना की निशानदही करते हैं। बरतानवी माहिरीन ने कहा अद्वियात और तरीका इलाज अभी रिसर्च के मराहिल में है। हस्पतालों में मरीजों का इलाज मुआलजा तसल्ली बख्श है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की जानिब से इजलास में बताया गया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि शोबा वायरोलॉजी की तरबियत के लिए प्लान मुरतब कर लिया गया है। जल्द ही वबाई अमराज का शोबा कायम कर दिया जाएगा, जबकि वबाई अमराज के तदारुक में मदद मिलेगी और रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। अद्वियात के नताज कोरोना के हौसला अफजा नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर बिल्किस शबीर की जानिब से इजलास में अपडेट किया गया। उनका कहना था कि अस्पतालों में मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। जदीद तहकीक, जदीद तरीका इलाज और तशखीस के मुतालिक बाहमी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में बरतानिया के नामवर वायरोलॉजिस्ट और वबाई अमराज के माहिरीन ने शिरकत की। PCR टेस्टिंग मुस्बत आने पर बार बार टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, माहिरीन की जानिब से वाज़ह कर दिया गया है। जबकि बुखार, फ्लू और सर दर्द कोरोना की निशानदही करते हैं। बरतानवी माहिरीन के मुताबिक अद्वियात और तरीका इलाज अभी रिसर्च के मराहिल में हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अस्पतालों में मरीजों का इलाज मुआलजा तसल्ली बख्श है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने ऐसा कहा। शोबा वायरोलॉजी की तरबियत के लिए प्लान मुरतब कर लिया गया है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि जल्द ही वबाई अमराज का शोबा कायम कर दिया जाएगा। वबाई अमराज के तदारुक में मदद मिलेगी। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। जी हाँ, अद्वियात के नताज कोरोना के हौसला अफजा नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर बिल्किस शबीर ने बताया कि अस्पताल में मरीज तेजी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें शोबा वायरोलॉजी की तरबियत के लिए प्लान मुरतब कर लिया गया है। इस हवाले से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना के जदीद तरीका इलाज और तशखीस पर इजलास हुआ। जदीद तहकीक, जदीद तरीका इलाज और तशखीस के मुतालिक बाहमी तबादला ख्याल किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निजी कंपनी मेल्सन की जानिब से ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। कोरोना वायरस 11 दिसंबर 2019 में दरियाफ्त हुआ। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि 3500 हेल्थ केयर पर वार्डर्स जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि चाइना में एक भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल वायरस से मुतासर नहीं हुआ। चाइना की जानिब से किए गए इक़दामात मशअले राह हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम के मुताबिक हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मजीद एहतियात बरतना होगी। अमेरिका की मशीन 12 सेकंड में जरासीम का 99% खात्मा करती हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम की जानिब से कहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।